Hello everyone. Uh, Today we are going to talk about, especially about that visa fee increase that Donald Trump has just introduced, right? So Trump has just announced like they are going to impose fees of 100k, that is 1 lakh dollar, which is equivalent of if you convert it to INR, it will very much go into the 90 lakhs or something. So which is practically impossible for anyone to just take any outsource any low end workers, right? So low end worker anywhere, someone like maybe earning 90k dollar to the 120k or 130k dollars, all those are basic ones. इट मे फील लाइक इंडिया में तो यहाँ पर इतना कमाते हैं, राइट? इंडिया में मतलब 100 के मतलब 80-90 लाख या फिर 1 करोड़ का पैकेज है, बट उनके लिए कुछ नहीं है बिकॉज वो पर कैपिटा इतना है, राइट? वहाँ पर वो कौन से पर कैपिटा और हमारा कौन सा पर कैपिटा है, राइट? हम तो वही वही $2000 $2200 में अभी खेल रहे हैं. सो ये जो प्रैक्टिकल फीस लगा है वो एक्चुअली कह रहा है कि नहीं, वी डोंट वांट लोअर एंड वर्कर्स, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. सो नाउ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ उन्होंने कहा है. पहले तो effectively this is going to be applied right away, right? Every new H1 application will require US companies to pay staggering 100k fees per year. For context, for example, the earlier it was only around 200 to 800 depending on the category and the amount of pay they are getting. So that was nominal, anyone would pay it. The official reasoning, if you ask, like they are saying to stop American companies from replacing US worker with the cheap foreign labor, and to make sure truly skilled professional only are hired. But behind the scene, I think picture is something different. But there's no doubt that who feels the biggest pinch would be the Indian professional, because I'll tell you later. I mean, 72%, right, of all the H1 applicants are Indians. So of course this is clearly targeted for Indians. Why this is a game changer? So imagine this is like a toll, right? For example, if you are going from Mumbai to Pune, and that the toll just went from 50 to 1 lakh, how many people would go to that route? Very less people. Would you still be drive just for fun? I think अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. आप ऐसा बोलोगे कि नहीं, जो मेरा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वो वहीं होगा, तभी आप चाहोगे वहाँ पर. अदरवाइज ऐसे ही वीकेंड में ऐसे ही घूमने चले गए लोनावाला लवासा, वैसे कोई नहीं जाएगा फिर. that's exactly this policy is designed for. So it will stop the mass hiring. Body shopping IT jobs will probably go under the drain. Only the rare and highly skilled jobs, somewhere like 200 and 300 400k, kind of like the VPs and the very highly skilled manpower would be required with this. Who is most impacted? Now this is where I was coming, right? Like this is specifically targeted with India. I mean, just few days ago, Donald Trump is wishing our Indian Prime Minister happy birthday, which is very good, which is politically correct, and that's how it should be. But मतलब उस टाइम पे सभी बोल रहे थे नो यूएस आ गया वापस. आई थिंक यूएस इज नाउ गोइंग टू गो डाउन, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया एंड ऑल. नाउ लुक एट दिस, राइट? they want to they don't want Indian laborers. That's what their the position is, right? That's their position is. So who's most impacted? Of course the large Indian IT companies like the Infy, Wipros and Tech Mahindra and all those, like HCL and all, are going to be suffered. There are big US tech giants as well, like the likes of Amazon, Google, Microsoft, Meta, Apple, but I think they have a deal. So they are kind of in agreement with okay what's going to happen and how are they going to approach this situation. I think they are pretty clear. So just look at this, right? This is 72.6%, right, which is a very big number, very big. I mean, single-handedly India and China is actually dominating your H1B categories, right? There's literally no one from Canada, Korea, South or Philippines. No one's there. It's only single-handedly India and some part of it from the China. I think of lately, I think they are many of the people they are coming to study and then they are going back because they have a lot of opportunities and in infra and in
schemes and all that to push the right amount of entrepreneur spirit. So वो लोग अपनी दुनिया में जा रहे हैं. बट इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से अगर पढ़ के बाहर आए तो देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी, राइट. लिटरल अपॉर्चुनिटी नहीं है. जो भी है वही वो छोटे मोटे या फिर यही लोग अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके अंदर जॉब चाहिए तो यहाँ पर उनका पैकेज रहेगा वो वही आपको 80-90 लाख या फिर 1 करोड़ का मिल जाएगा. वहाँ जाओगे यूएस में तो बेटर लाइफस्टाइल और पे दोनों मिलेगा, तो लाइफस्टाइल और पे चॉइस करेगी कोई भी. तो विच इज़ ऑब्वियस चॉइस. सो यू नो दिस नंबर 72.6% इज ऑब्वियस एंड क्वाइट एविडेंट. लाइक many people don't want to stay here. That's fact. Now just look at this, right? How many H1B approvals are by company in 2025? So Amazon got approval of more than 10,000 people. TCS is 5,500, Microsoft 5,100, Meta, and like so. आप देख पा रहे हो, like list is big. Services में I think TCS has a higher number, but the effect would be more on Infosys, because I tell you the reason. See, 5,500 is of a context of 6 lakh people. So TCS has a total strength of 6 lakh. Infosys has a total strength of around 2.5-3 lakhs. So you know, out of which only 2,000 applicants, and the other side the TCS is 5,500. Broader effects to watch would be, you know, US big techs. I mean, there will be less foreign hiring, slower innovations, higher costs. All those will happen. Now अभी बात ऐसी हो रही है कि ये क्यों किया और अभी क्यों किया, राइट. सो अगर आपको याद हो तो देयर वाज अ मीटिंग फ्यू डेज बैक with Donald Trump, the president of the United States, and you know, CEOs of all the large companies as in the, you know, Mark Zuckerberg from the Meta platform, Satya Nadella from Microsoft, then it was Tim Cook from the Apple, and a few representatives from the other companies as well, and a lot of people. Even Tesla was invited, but Tesla denied because of the business reasons. So that's a different topic. But Tesla don't have that much of hiring as well. But yes, I mean they had a very beautiful, you know, dinner, and then they talked about and made some press conference like we are going to you know, invest 600 billion, 500 billion, like everyone throws the different numbers. That's a different story. फिर वो मार्क ज़ुकरबर्ग ने एक बार बोला भी था कि लाइक ऑफ द माइक बोला था ट्रम्प को कि आप बता दो यार कि कोई कौन सा नंबर बताना है, बिकॉज दे वर ऑल्सो नॉट श्योर कि कौन सा नंबर बताएं. सो वो एक मार्केटिंग ही था, बट ठीक है, जो भी था वो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए वो सही जा रहा है, तो उन्होंने किया. अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो दो चीज़ होती है, एक तो आपको मीडिया में दिखाने के लिए वाली चीज़ होती है कि हाँ भाई हाँ मीडिया में दिखा दिया सबको कि इतना इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी बात है, बट अंडर द टेबल या फिर ऑफ द रिकॉर्ड भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जिसके अंदर मेरा ऐसा अंदेशा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने आई थिंक टेक सीईओ से बात की है कि लाइक वी आर प्लानिंग समथिंग बिग अराउंड H1B, व्हाट डू यू थिंक. एंड आई थिंक दे सेड ठीक है, हम जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर यूएस के पीपल हायर कर देंगे, और जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर एआई का यूज़ कर लेंगे. सो दो रास्ते थे कि आप इंडियंस को और H1 होल्डर्स को या इमिग्रेंट्स को निकालना है. कैसे निकालोगे? आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. अगर निकाला तो सेवरेंस पे देना है, फिर उनको स्टेबिलिटी देनी है, मतलब बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है. यूएस में इतना सिंपल नहीं होता कि आज चलो भी निकाल दिया और टीसीएस ने यहाँ पर निकाल दिया, वैसे नहीं चलेगा वहाँ पर. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला कि आप फीस हाइक कर दो, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, राइट. फिर आप टेक्निकली बता सकते हो कि देयर इज लॉट ऑफ यू नो अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ द फीस, सो वी कैन नॉट कंटिन्यू योर H1 वीज़ा. सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग, I mean, and you know, I think all the tech companies are in alignment with what's going to happen, and they are very focused to adapt AI and wherever required. You know, अगर यहाँ पर approximately I think 3 से 3.5 लाख लोगों की जॉब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इमिग्रेंट्स है जिनको वापस शायद आना पड़े. तो 3.5 लाख से बोलेंगे ठीक है, हमारे 30,000 में काम हो जाएगा, 30,000 अमेरिकन ले लेंगे, सो 1/10 ऑफ द कॉस्ट हो गया, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर एआई यूज़ कर लेंगे. तो दोनों चीज़ हो गया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, और आपका यूएस में जॉब भी मिल गया सबको. सेकेंडली यूएस यूएस फेडरल रिजर्व का अभी रेट कट हुआ था. उन्होंने क्या बोला वहाँ पर? उन्होंने एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाया था कि यूएस में अभी सर्विस इंडस्ट्री में डिफ्लेशन हो रहा है. मतलब क्या कह रहे हैं कि सेम सर्विस जो हमारे बैकएंड के जितने भी वर्क है, जैसे कि अकाउंटिंग के काम है, सॉफ्टवेयर के काम है, बीपीओ केपीओ जो भी है,
उसमें डिफ्लेशन आ रहा है, आउटपुट सेम है बट अपना जो कॉस्ट है वो कम आ रहा है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? एक तो आप लोगों को निकाल रहे हो, दूसरा लोग निकल रहे हैं बट फिर भी आउटपुट सेम आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, आप कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ला रहे हो। एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? एआई से आ रही है। सो लॉट ऑफ एआई रिलेटेड changes are happening, and I think this is a big forced move towards AI from the innovators of the AI itself. ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूएस में आएगा तो मतलब अपने इंडिया में पहले आ जाएगा, नहीं। यूएस ने आई थिंक स्टार्ट कर दिया, आई थिंक ये धीरे धीरे सब जगह भी आएगा, यूरोप में भी आएगा, कनाडा मैक्सिको सब में आएगा। अभी इट्स नॉट सब कुछ खराब है इंडिया के लिए, नहीं। अभी इससे ना काफ़ी कुछ चीज़ें होगी कि शॉर्ट टर्म में तो ऑफकोर्स मेजर एक सेटबैक आएगा कि इंडियन में अगर जितने अभी कैसे मॉडलिटी और कैसे लोग आते हैं वी डोंट नो, बट आएंगे लोग रिटर्न तो आएंगे, जितने भी आते हैं कैसे भी आते हैं, बट वो यहाँ पर आएंगे तो अभी वहाँ के आईटी कंपनी उनको काम तो करना ही है। तो आई थिंक वो ऑलरेडी उनका फोकस है कि वो जीसीसी में जा रहे हैं, मतलब जीसीसी डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो आप हैदराबाद का देख लो, वहाँ पर गूगल का सबसे बड़ा जीसीसी बन रहा है, अमेजोन का बन रहा है और वॉलमार्ट का बन रहा है और बाकी कुछ दी एसएपी एंसा दी सेल्सफोर्स, एवरीवन इज प्लानिंग। सो जीसीसी का बूम होगा, ठीक है। फिर जिसका जीसीसी नहीं है, मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नहीं है, वो लोग छोटी मोटी ऑफिसेस ले लेंगे, नए पार्क बनवा लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब यहाँ पर ऑफिसेस लेंगे वो। वहाँ पर जो लोग कर रहे थे वो यहाँ आके भी अगर वहाँ पर चलो वो वहाँ से 3-3.5 लाख लोग आ रहे लाइक वर्स्ट केस, तो 3.5 लाख लोगों के सामने यहाँ पर आपको कम से कम 6 से 7 लाख लोगों को लेना होगा, तब जाके वो उतना काम होगा। क्योंकि वो जो है वो सेम सैलरी पे तो आएंगे नहीं, वो पैसे भी कम लेंगे और काम भी उस हिसाब से देंगे, सीधी सी बात है। तो ये एक चीज़ है जीसीसी, तो इससे अपने इंडियन मार्केट को बेनिफिट हो सकता है। रिमोट वर्क बूम में भी हो सकता है क्योंकि एवरीवन नोज कि हाँ ठीक है रिमोट में भी काम होता ही है। लाइक आई एम सिटिंग एट अ प्लेस वेयर आई हैवंट आई मीन इफ आई वांट टू गो आई कैन गो, बट फोर्स नहीं है। तो कंपनीज नोज रिमोट वर्क्स, मेट्रोस विल थ्राइव बिकॉज ये जो जितना भी इतना आईटी का बूम है वो कहाँ पर आएगा? मेट्रोस में आएगा। वो डेफिनेटली मतलब ठीक है 10 में से 100 में से आप 4-5 बोल सकते हो कि वो अपने विलेज चले जाएंगे, बट काफ़ी लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल कम टू मेट्रोस, सो मेट्रो विल थ्राइव अगेन। Economic shift like the remittation will drop, so believe it, I mean I don't exactly remember the number, but around 100 billion is coming in remittance from US to India. Now हमारा जो ट्रेड सरप्लस था यूएस के साथ वो अराउंड कुछ ही बिलियन का था, तो वहाँ से कोई हमें ज़्यादा पैसा मिलता नहीं था। बट हमारा जो डेफिसिट था वो डेफिसिट था चाइना के साथ, अराउंड 100 से 110 बिलियन तक का है, और वहाँ पर रेमिटेंस हमारे आ रहे 100 बिलियन, तो वहाँ से हमारा पैसा उनको मिल रहा था। तो ये रेमिटेंस का तो अभी पंगा होगा। अभी जो 88-87 का हमने USD INR देखा है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि अगर वो 94-95 भी चला जाए, बिकॉज ये बहुत बड़ा हिट होगा और हमें कहीं से तो डॉलर लाना होगा। अगर डॉलर नहीं है तो आपको अपनी करेंसी तो डिवैल्यू करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम ना, कोई रास्ता नहीं है। रियल एस्टेट प्राइस इन इंडिया मेट्रो विल, बिकॉज ऑफकोर्स वो नई डिमांड आएगी तो डेफिनेटली वो लोग आएंगे, जो भी लोग आएंगे तो वो लोग उनको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, उनको अच्छा सेटअप चाहिए, सब कुछ एटलीस्ट उनकी परचेसिंग कैपेसिटी हायर होगी तो दे डिमांड मोर बेटर प्रीमियम एक्सपीरियंस। एजुकेशन, आई थिंक एजुकेशन में बहुत बड़े वाला सर जाने वाला, बिकॉज इसमें क्या होगा कि जिसके पास पैसा है वो खर्चेगा, और वो अभी उनके पास अपने पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम जज कर पाएंगे हाँ ये अच्छा है ये नहीं है। बात इतनी है कि अगर है पैसा तो खर्चना तो पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में पब्लिक जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो होपलेस है। तो यही आपके पास प्राइवेट ऑप्शन है। प्राइवेट के अंदर भी आपके पास टीयर्स है कि आप छोटे से स्कूल्स ले लो जो 10, 20 और 30 के वाले होंगे, या फिर सीधे होंगे 60-70 वाले, और लास्ट में एक टॉप टीयर होंगे, वो होंगे 2 लाख 5 लाख 10 लाख वाली फीस वाले। तो वो एक अलग ही स्कीम होने वाली है। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग फोर्स्ड पुश फ्रॉम दी US। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू रीसेट, एंड यहाँ से क्या होता है ना कि ये एक डायरेक्शन देता है आपको। ऐसा नहीं कि ये स्टेप से ही इतना अच्छा हो जाएगा बुरा हो जाएगा, ये इस पर बात करने से अच्छा है ये आप देखो कि फोकस क्या है यहाँ पर कंट्री का फोकस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका फोकस यही है, दे डू नॉट वांट लो एंड वर्कर्स। 2000 का टाइम 1980s का 90s का वो टाइम अलग था, डॉट
वाला टाइम अलग था, 2008 में भी ठीक था, राइट? वहाँ पर हम उनको लोग चाहिए थे, दे वांटेड पीपल, दे कम एंड डिजिटाइज देयर इकोनॉमी, वो हो चुका है। अभी एफिशिएंसी की बात है और एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ एआई से आएगी। सो दिस इज़ अ बिग पुश, दिस इज़ अ बिग पुश ऑन एआई, एंड एआई सबकी बैंड बजाने वाला है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स इनोवेशन हो रहा है यहाँ पर, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी को। और कहीं ना कहीं तो आई थिंक हमें इनोवेट करना होगा। आई थिंक दिस इज फोर्सिंग अगेन इंडिया ऑन टू go for innovation, try something new, put your homegrown companies and see how it goes. अभी देखते हैं कैसे होता है, हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स, आई डू नॉट हैव एनी होप, बट ठीक है, हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स और हाउ द ओवरऑल एनवायरनमेंट अराउंड सराउंडिंग इज गोइंग टू बिहेव, वी डोंट नो, बट ठीक है। आई थिंक दिस इज वन मेजर डेवलपमेंट, सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। चलो, थैंक यू, सी यू लेटर, बाय बाय।